Hello students, already I have uploaded the first part of the video, and in that video we had discussed how Lenchos get disheartened and disappointed after getting his crops. यानी कि फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने ये पढ़ा कि किस तरह से लेंचो डिसहार्टेंड होता था, निराश हो जाता है जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। एंड दे थॉट कि इस साल दे आर गोइंग टू गेट नथिंग, मीन्स दे हैव टू गो हंग्री। उनको ऐसा लगता है कि इस साल वो लोग भूखे हो जाएंगे। लेकिन क्या सही में ऐसा होता है? आर दे रियली गेट डिसहार्टेंड? लेट्स सी इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी। सी, but in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, and that hope was help from God. Here it is being said that, but in the hearts of all refers to the all family members of Lencho. Lencho along with his family members, there was hope. उनके मन में ये विश्वास था, ये belief था that that God would surely help them, कि भगवान उनकी मदद जरूर करेंगे। And that's why he consoled his family member by saying, "Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger." He just tried to console his family member by saying that it seems that nothing has been left. लेकिन याद रखो कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। नो वन डाइज ऑफ हंगर, यानी ही कंसोल्ड हिज फैमिली मेंबर। उसने अपने फैमिली को ये कहा कि ऐसा हो सकता है कि सब कुछ लगे खत्म हो गया है, बट स्टिल देयर इज अ होप, और देयर इज सेइंग नो वन डाइज ऑफ हंगर। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। एंड इट इज सेड ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। और सारी रात, throughout the night, Lencho kept on thinking one hope. और वो होप क्या थी? क्या वो रात भर सोचते रहा? The help of God. कहाँ से? He was sure that they would get help from God, कि भगवान उनकी मदद जरूर करेंगे। Whose eyes? Here whose eyes refers to whose eyes? God's eyes. From the very childhood, he has been taught that God sees everything, as he had been instructed. Who had been instructed? Lencho had been instructed. उसे बताया गया था कि भगवान हर कुछ देख लेता है, and God understand everything, even what is deep in one's conscience. मतलब क्या आपके माइंड में है, क्या आप सोचते हैं। Lencho was an ox of a man. Ox of a man means hard working person. वो बहुत मेहनती था। And then वो हमेशा खेतों में काम करते रहता था। Lencho was an ox of a man working like an animal in the fields. और खेतों में वो बहुत मेहनत से काम करता था। That's why he is being compared to a ox. But still he knew how to write. लेकिन वो जानता था कि कैसे लिखा जाता है। Means he know how to read and write. The following Sunday means next Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. Next day, following Sunday means the next day was Sunday, and he decided to write a letter and send it to God. And do you know that the letter was addressed to the God? He started to write. क्या लिखा उसने? देखिए, God, he wrote, "If you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes, because the hell is strong." उसने क्या लिखना शुरू किया? He addressed the letter to God, और उसने लिखा, just he told God कि if he would not help them, he refers to what? God, कि अगर भगवान उन लोगों की, उसकी और उसकी फैमिली की मदद नहीं करेंगे तो वो लोग इस साल भूखे रह जाएंगे। एंड नॉट ओनली दिस, एंड ही जस्ट रोट सीकिंग हेल्प फ्रॉम गॉड। ही जस्ट आस्क्ड फॉर 100 pesos. Already I have told you, pesos is a currency that is
that belongs to where? Latin America and some other countries also. Right now it is not in my mind, but I'm sure that it is currency of Latin America until the crops comes. And after that he just narrated the whole story, how his crops went destroyed. He wrote to God on the envelope after completing the letter. लेटर लिखने के बाद उसने इन्वेलप के ऊपर एड्रेस में सिर्फ गॉड लिखा, पुट द लेटर इनसाइड, इन्वेलप के अंदर रखा. स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और ऑब्वियसली अभी वो परेशान था, शहर गया. एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड द स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स. आफ्टर पुटिंग एन स्टैम्प उसने क्या किया, उस लेटर को ड्रॉप किया कहाँ पे? मेल बॉक्स में. मेल बॉक्स जिसमें हम लोग लेटर डालते हैं. वन ऑफ द एम्प्लॉयज who was a postman and also helped at the post office. वहाँ पर एक एम्प्लॉय था, जो कौन एम्प्लॉयज, जो कि पोस्टमैन था, and also helped at the post office. वह पोस्ट ऑफिस में मदद करता था. went to his boss laughing heartily. Means he was very much amused to see the letter. वो बहुत हंसने लगा और वो उस लेटर को लेकर अपने बॉस के पास गया. who was boss? postmaster. and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. Obviously, I think none of us has ever written a letter to God. The postmaster कैसा person था? Here physical appearance has been given. He was a fat, amiable. Students, at first let me tell you, amiable is the word that is used for person who is friendly as well as pleasant. amiable word है जो किसके लिए यूज करते हैं हम? वैसे पर्सन के लिए जो फ्रेंडली भी हो और प्लेजेंट भी हो. नाउ सी, पोस्टमास्टर ऑफ फैट एमिएबल fellow means again fellow refer person also broke out laughing. Along with postman he also started to laugh after seeing the letter, but almost immediately he turned serious. लेकिन तुरंत ही वो सीरियस हो गया. एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड एंड ही सीरियसली टोल्ड व्हाट फेथ. ही वाज सरप्राइज्ड एट द फेथ ऑफ द पर्सन हु रोट द लेटर टू गॉड. वह उसे बहुत आश्चर्य हुआ और उसने विश की कि काश उसे भी भगवान में ऐसा ही विश्वास होता. स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विथ गॉड, कि वह भी भगवान को लेटर लिखता. सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड. एंड देन पोस्टमास्टर ने सोचा कि उस इंसान की जो भगवान में विश्वास है उसको शेक नहीं किया जाए. ही वॉन्टेड टू कीप हिज फेथ इंटैक्ट. वह चाहता था कि वो विश्वास को बनाए रखे. द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर. उसको एक आइडिया आया और वो आइडिया क्या था कि वो इस लेटर का जवाब देगा. बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट. एविडेंट इज द वर्ड, द अदर वर्ड फॉर एविडेंट इज क्लियर. जब उसने लेटर खोला, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल. उसे पता चल गया कि आंसर देने के लिए उसे कुछ और भी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी बिसाइड्स गुडविल, इंक एंड पेपर. बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन. लेकिन उसने एक स्टिक टू हिज रेजोल्यूशन मतलब वंस ही डिसाइडेड टू हेल्प द पर्सन, और वह उस चीज पर क्या स्टक रहा, फिक्स रहा. ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज. ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी. और उसने सिंस लेंचो ने क्या मांगा था, 100 पेसोस. तो उसने कलीग से रिक्वेस्ट किया कि आप सारे लोग कंट्रीब्यूट करो, और उसके कलीग ने भी पैसे दिए और उसने खुद भी दिया. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पेसोस. इसके लिए ये असंभव था 100 पेसोस गैदर करना. सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ. इसलिए वह फार्मर को सिर्फ कुछ ही पैसे, हाफ से ज्यादा पैसे भेज पाया, बस मोर देन 50 पेसोस. He put the money in an envelope addressed to Lancho, and with it a letter containing only a single word as a signature, God. उसने पैसे रखे, लेटर को लेंचो के नाम पे भेजा और सिर्फ उस पर क्या साइन किया, गॉड. थैंक्स स्टूडेंट.